Good morning, all of you. Today, I, Chavi Gupta, welcome you all in this session. I hope you all are safe and watching the videos regularly and must have done your work in your respective notebooks. Now it's time to do our new topic, that is metals and non-metals. In the previous session, we have done the physical properties of metals. Now it's time to do the chemical properties of metal. Now, if you remember, what is the physical property? That it leads to the change in physical appearance, but not the actual properties of the material changed. But in chemical properties, the actual properties of the material change, which occur due to a chemical reaction. Now, what do you mean by a chemical reaction? You must have remembered that in class 7th you have read about, that is the physical and chemical change, and in that chemical change you have read the chemical reaction in which the reactant and products are totally different from each other. Now that was all because of your chemical reaction, because here the reactant is being changed to make a new substance, that is a product which has no similar properties as compared to your reactants. Okay, now they come under irreversible change, क्योंकि chemical change आपका irreversible change होता था. Now here the reactant is totally different from the product. This is the chemical properties. Now on that basis, if we are studying about a chemical reaction or a chemical property, we need to remember some of the states. Now what are states? That is solid, liquid and gas. That are the three states that you must have learned till the starting of your education. Now in the chemical reaction we have some more states. Now solid, liquid and gas exist, but except that we have some more states that we need to write in a chemical reaction. Now elements can be in solid. अगर solid form में element, then we will write in brackets S. हम exactly ऐसे ही लिखेंगे. Like for example, if we are using zinc and this zinc is in solid form or in powder form, so we will write it as in brackets solid. That means it can be in powder form or it can be in metal form. Okay, now next is अगर if the metal is in liquid state, अगर element आपका liquid state में, so you will write small l like this. Okay, in bracket. Like for example, if I say about H2O, this is your water. So water is in liquid state, you will write liquid, L. Okay, now if I write that element is in gaseous state, gas release हो रही है, so we will write in bracket as small g, like oxygen, O2. This is your gas, so we will write in bracket as G. Okay, now next is aqueous state. If the element is in aqueous state means in this state solid substance is mixed with water. Like if you take zinc, if you take sodium plus water, so ultimately क्या हुआ कि आपने सोडियम को पानी में मिक्स किया है. सो क्या होगा वो आपका कि जब आप सोडियम को पानी में मिक्स करोगे तो वो एक्वस स्टेट में आएगा कि सोडियम डिजॉल्व हो जाएगा वाटर के अंदर. सो दैट स्टेट इज नोन एज एक्वस स्टेट. And for that you will write AQ and both are in small letters. Now next is if you have acids. अगर आप एसिड्स की यूज़ कर रहे हैं तो एसिड दो तरह के होते हैं क्लास. दैट इज़ योर डाइल्यूट. फॉर डाइल्यूट यू विल राइट DIL dot in brackets, and for concentrated you will write CONC dot in brackets. So these should be written while writing a chemical reaction. Now अब chemical properties we are studying, so we need to study the chemical reactions of metals with some of the basic part. Now the first one is reaction of metal with oxygen. metal के reaction करा रहे हैं oxygen के साथ, that means air के साथ. फाइन. और एयर में क्या है स्पेसिफिकली ऑक्सीजन. तो वेन एवर वी रिएक्ट एनी मेटल विद ऑक्सीजन, जब भी हम एक मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इट विल गिव अस मेटेलिक ऑक्साइड, लाइक इफ आई राइट मेटल फॉर M प्लस O2,
So it will gives us MO2, MO. Okay, so this is your metallic oxide which is basic in nature. Now for example, potassium, K stands for potassium, plus O2 is your oxygen. It gives you K2O, that is potassium oxide, and this potassium oxide is solid in nature. Now the next one is magnesium, that is solid in state. Magnesium has a symbol of Mg, plus oxygen is O2. In gaseous state it will gives you MgO, that is magnesium oxide. Now this magnesium oxide is in solid state, that means whenever we burn magnesium with oxygen, it gives us magnesium oxide, which converts into powder form, and this powder form is exactly similar, is basically a solid form. Now whenever magnesium burns, it always gives a white dazzling light, means चमचमाते हुए light देगा आपको. Now the next reaction is aluminium, which is solid in state, plus O2, that is oxygen gas. It will gives you Al2O3, that is in solid state. Okay, now the next reaction is whenever we react iron plus oxygen, it gives us iron oxide, and this oxygen is basically is not a dry air, ये वो air है जिसमें moisture content available है. That's why it forms an iron oxide, which is a rust that you must have seen in your previous classes. So iron metal does not burn in dry air even on strong heating. So in moist air it gets oxidized to form iron oxide, which is rust. So Fe2O3 is your rust. Now the next one is sodium and potassium. The next one is sodium and potassium are kept immersed in kerosene. अब इसमें बेसिकली कुछ कॉमन सी कुछ मेन पॉइंट्स हैं आपके, दैट इज़ कि हम सोडियम एंड पोटाशियम को हमेशा केरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं. केरोसिन आपका वो ऑयल जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग के टाइम पे निकलता है, तो केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं, बिकॉज अगर आप सोडियम एंड पोटाशियम को एज इट इज छोड़ देते हैं एयर में, तो एयर में मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो वो उस मॉइस्चर कंटेंट के साथ ईजिली रिएक्ट कर जाता है, एंड बहुत विग्रस रिएक्शन, मतलब बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से फायर कैच हो सकती है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड. जब आपको मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड है, वो स्लोली रिएक्ट करते हैं एयर के साथ. क्यों? क्योंकि और जब वो रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं जो उनको क्रोजन से प्रिवेंट करता है. नाउ द नेक्स्ट इज सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड. वो रिएक्ट ही नहीं करते एयर के साथ, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इसलिए तो आपके सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड धीरे धीरे काला पड़ता है, एकदम से काला नहीं पड़ता एज कम्पेयर टू आयरन. नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर एंड स्टीम. नाउ व्हाई इट इज वाटर एंड स्टीम? द रीज़न बीइंग इज कि वाटर को आप कोल्ड फॉर्म में भी, ठंडे पानी के साथ भी यूज़ कर सकते हो, बॉइलिंग वाटर स्टीम की फॉर्म में भी, और एक होता है सिर्फ आपने वाटर को हीट अप किया. फाइन. सो यहाँ पे हमने दो ही केस पढ़े हैं, दैट इज़ योर, यहाँ पे हम तीनों केस ले रहे हैं, कोल्ड, हॉट एंड स्टीम. हॉट की पानी गर्म है, स्टीम की वो भाप की फॉर्म में, तो कौन सा मेटल कैसे रिएक्ट करता है वो डिपेंड करता है कैसा पानी उसे चाहिए रिएक्शन के लिए. नाउ जब भी आपका मेटल, वेन एवर अ मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इट विल गिव यू मेटल हाइड्रोक्साइड, प्लस या तो मेटल हाइड्रोक्साइड देगा या मेटल ऑक्साइड देगा, बट hydrogen gas will be evolved over here. Now see for example, sodium plus H2O, this is your water. Sodium can react with any type, with cold water, so it will form sodium hydroxide. Class, the symbol of hydroxide is OH. The symbol of hydroxide is OH, plus hydrogen gas plus heat energy. Next आपने कैल्शियम प्लस वाटर लिया, कोल्ड वाटर है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट आपने मैग्नीशियम प्लस वाटर. क्लास, मैग्नीशियम के साथ वाटर, कोल्ड वाटर रिएक्ट नहीं करेगा, दैट्स वाई वी नीड हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट आपको एल्यूमिनियम और जिंक में क्लास वाटर स्टीम में होना चाहिए, ना ही कोल्ड ना ही हॉट, सिर्फ स्टीम की फॉर्म में. सो इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सी, यहाँ तक हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा था, बट यहाँ पे मेटल के साथ अगर वाटर रिएक्ट करे तो इट विल फॉर्म ऑक्साइड. यहाँ पे ऑक्साइड बनेगा, सिर्फ ओ है,
So that is aluminum oxide plus hydrogen gas. And the next one is zinc plus water gives you zinc oxide plus water. So I hope the reaction of metals with water or steam is clear to you. Now the third part is reaction of metals with acid. कि metals के साथ acid कैसे react करते हैं. Whenever a metal reacts with an acid, it gives you metallic salt. It gives metallic salt plus hydrogen gas. Clear है. Now for example sodium, state लिखी हमने solid plus HCl, that is dilute form में है, gives you sodium chloride. क्यों? क्योंकि ये H हट गया यहाँ से एंड Na यहाँ आके बैठ गया, तो NaCl प्लस हाइड्रोजन सी. अब यहाँ पे क्या है, ये एक्वस है. क्लियर है. दैट मीन्स कुछ वाटर कंटेंट अवेलेबल है. नाउ नेक्स्ट इज potassium plus H2SO4. H2SO4 is a sulfuric acid which is known as king of acids. Gives you potassium sulfate aqueous form में plus hydrogen gas. अब जो metals less reactive हैं हाइड्रोजन से, वो कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. वो एसिड में से हाइड्रोजन को नहीं ले पाएंगे और वहाँ पे कोई रिएक्शंस नहीं होगी, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर. नाउ द नेक्स्ट वन इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस. अब हमने मेटल्स की एसिड के साथ कर ली, अब हम मेटल्स की बेस के साथ रिएक्शन करेंगे. नाउ द वन इज द व्हेनेवर अ मेटल रिएक्ट्स विद अ बेस, इट गिव्स यू मेटालिक सॉल्ट. सॉल्ट तो मेटालिक ही रहेगा आपका, प्लस hydrogen gas. Now for example NaOH, this is your sodium hydroxide which is a very strong base, plus zinc, this is your metal in solid state. It will give you, अब यहाँ पे कभी भी बेस और मेटल इंडिविजुअली अलग नहीं हो पाते बिकॉज सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक से. सो अब वो सोडियम जिंक को अब जिंक सोडियम को कम्प्लीटली डिस्प्लेस नहीं कर पाता. दैट्स वाई इट फॉर्म्स सोडियम जिंकेट. That's why it forms sodium zincate. That means sodium is Na, zinc is Zn and Kate is O2. So it will form sodium zincate plus hydrogen gas. When zinc reacts with aqueous sodium hydroxide, it gives sodium zincate and hydrogen gas. So I hope this is clear to you. Now the next one is displacement class weight. नेक्स्ट वन इज, अब हमने मेटल्स की रिएक्शन पढ़ ली. नाउ वी विल रीड द रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन. अब बेसिकली जब कार्बन एंड सल्फर इज नॉन मेटल, जब भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो या तो वो न्यूट्रल ऑक्साइड्स देंगे. ऑक्साइड्स तो फॉर्म होंगे बट कैसे, न्यूट्रल्स. कैसे, न्यूट्रल. सो एंड दीज न्यूट्रल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. या तो वो न्यूट्रल नेचर के होंगे या फिर वो जनरली एसिडिक होते हैं. सो बेसिकली कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू सल्फर डाइऑक्साइड. सो बाकी ऑक्साइड्स क्या हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड. ये दोनों ऑक्साइड्स न्यूट्रल इन नेचर है. नाउ द नेक्स्ट वन इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स. कभी भी नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं करते क्योंकि वो भी नॉन मेटल्स हैं एंड एसिडिक सॉल्ट एसिडिक इन नेचर हो जाएंगे और एसिड एसिड आपस में कभी भी रिएक्ट नहीं करते. ओके, नाउ इट्स टाइम टू डू अवर नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ सी, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जस्ट सी फ्रॉम एन एग्जाम्पल. फ्रॉम दिस वन you can see A is over here and BC are together. Fine. Up we know that in this case A is more reactive than BC. Fine. So what will happen? The A will push B and the B will come out. So A will take the place of B and B will take the place of A. Means पहले A single था तो A सिंगल था तो A ने ज़्यादा रिएक्टिव था तो A ने B को पुश किया, C से वो हट गया. सो अल्टीमेटली इट विल फॉर्म AC टुगेदर एंड B विल रिमेन आउट. नाउ टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग. सपोज टू बॉयज आर स्टैंडिंग टुगेदर, सपोज रमेश एंड सुरेश आर स्टैंडिंग टुगेदर. फाइन. एंड द थर्ड पर्सन लाइक द सुमो रेसलर्स कम ओवर हियर. सो वॉट विल हैपन, जब सुमो रेसलर्स आएंगे ए बी का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था, सुरेश और रमेश का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था. बट जैसे ही सुमो रेसलर आया
सुरेश का बॉन्ड थोड़ा वीक हो गया, सुरेश थोड़ा वीक इन नेचर हो गया। अब सुरेश को सुमो रेसलर ने हटा दिया और खुद सुमो रेसलर रमेश के साथ जाके बैठ गया, तो सुरेश क्या हो गया, अलग हो गया। दैट मीन्स सुमो रेसलर आया, उसने सुरेश को हटा दिया और रमेश के साथ अपनी बॉन्डिंग बना ली। सो दैट मीन्स जब एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आता है तो वो लीस्ट रिएक्टिव को हटाता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। नाउ फॉर इन दिस रिएक्शन सी ए एंड बी इज इन रेड कलर। फाइन, ए बी दोनों साथ साथ बैठे थे, लाइक दिस इज योर सुरेश एंड दिस वन इज योर रमेश एंड दिस इज योर सुमो रेसलर। फाइन, ये आपका सुमो रेसलर आया। अब इस सुमो रेसलर ने क्या किया, आया इस केस में सुरेश को पुश किया। फाइन, सुरेश को पुश किया, पुश करने से क्या हुआ, सुरेश तो अलग हो गया, सी सुरेश सिंगल हो गया, अकेला हो गया, और सुमो रेसलर ने क्या किया, आर के साथ अपनी बॉन्डिंग बना ली। तो यू कैन सी कि सुमो रेसलर प्लस रमेश तो इकट्ठे हो गए और ए जो सुरेश था वो अलग रह गया। सो इसमें क्या हुआ, सुमो ज़्यादा रिएक्टिव था एज कम्पेयर टू सुरेश, तो सुमो ने सुरेश को हटा दिया और खुद उसकी जगह ले ली। सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ सी द एग्जाम्पल्स एंड डेफिनेशन। Displacement reaction, the reaction in which more reactive element displaces a less reactive element from its compound or solution. Compound or solution में उसको displace कर सके, that is known as displacement reaction. Like for example, zinc plus copper sulfate. Like zinc plus copper sulfate. Now zinc is more reactive than copper. So ultimately zinc will push copper, copper will come out and it will acquire the place of zinc. Okay, and copper कहाँ आ गया, अलग से बाहर आ गया। क्लियर है यहाँ तक। सो अल्टीमेटली जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था तो उसने कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से निकाल के अपनी जगह वहाँ पे बना ली और कॉपर को बाहर निकाल दिया। सेम वी हैव द सेकेंड रिएक्शन, एल्यूमिनियम प्लस Fe2O3. Now एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो अल्टीमेटली एल्यूमिनियम आएगा, आयरन को पुश करेगा, बाहर निकालेगा एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। सो दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो वी हैव डन ऑल द chemical properties of metals and non-metals. Now it's time to do our uses of metals and non-metals. Now what are the uses of metals and non-metals? You can see copper और aluminium आपका wires की form में convert हो सकते हैं and they are good conductors of electricity. So they are used to make wires for carrying electric current. Now the next one is zinc को आप use करते हैं galvanization में so that आपका iron protect हो सके rusting के केस से। ये आपने क्लास 7 में पढ़ा कि आयरन इज कोटेड विद जिंक टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन. द नेक्स्ट वन इज सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम की आप ज्वेलरी बनाने में यूज़ करते हैं. आयरन, कॉपर मेटल्स आपके यूटेंसिल्स में बनाने में यूज़ होता है और मशीन के पार्ट्स. मरकरी आपको पता है थर्मामीटर में यूज़ होता है. एंड लेड इज मेनली यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉड फॉर ऑटोमोबाइल्स, बैटरीज एंड फॉर मेकिंग alloys. So these are the some uses of metals. Now it's time to do the uses of non-metals. हाइड्रोजन, फर्स्ट हाइड्रोजन है आपका अमोनिया और कुछ केमिकल रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है बनाने के लिए. लिक्विड नाइट्रोजन आपका रेफ्रिजरेंट या फिर ऑर्गन्स को स्टोर करने में हेल्प करता है बिकॉज लिक्विड नाइट्रोजन इज इनर्ट इन नेचर जिससे आपका मटेरियल ख़राब नहीं होता. नेक्स्ट सल्फर एसिड्स बनाने में, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने में और सल्फर ड्रग्स बनाने में हेल्प करता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज सल्फर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर. बेसिकली आपकी जो रबर होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो उस रबर को थोड़ा हार्ड करने के लिए हम वहाँ पे उसके कंपोनेंट्स को चेंज करते हैं तो वो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहलाता है. एंड नेक्स्ट इज गन पाउडर बनाने में. नेक्स्ट फॉस्फोरस इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ होता है. NPK आपने पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन में. नाउ द नेक्स्ट वन इज सिलिकॉन. सिलिकॉन आपके कंडक्टर्स या सेमी कंडक्टर्स बनाने में यूज़ होता है. जो आपके माइक्रोचिप्स लगी हुई होती हैं दे आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन. नेक्स्ट क्लोरीन, आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन आपका डिसइंफेक्टेंट की तरह वर्क करता है जिससे आप वाटर को क्लीन कर सकते हो. ऑक्सीजन आपका ब्रीथिंग सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है. सो व्हाट वी हैव रेड इज यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो इन दिस वे वी हैव कवर्ड द चैप्टर metals and non-metals with their physical and chemical properties. I hope this chapter is clear to you. And class 8, please submit your work within the time limits. I don't like to push you again and again for non-submission of work. So please submit your work
That's all for today. Thank you and have a nice day.